इस खास टेलीथॉन मिशन स्वच्छता और पानी में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये रैकेट और नेटवर्क 18 का जन आंदोलन है, because it's a joint movement for all of us to come together. Oh, absolutely. And joining us now is someone who's played a very big part in the Swachh Bharat mission, the initiative that's been taken by the government of India. He's in fact taken it now to the next level. A very special guest joining us live from Delhi, the Minister for Housing and Urban Development, Mr. Hardeep Singh Puri. Thank you very much, sir, for speaking with us here on Mission Swachhta or Paani. You're closely associated, of course, with the Swachh Bharat mission. You are the Urban Development Minister. How have you seen people becoming more and more conscious in these last 8 years about sanitation as well as water in these last 8 years? What started as a program of the government ended up by being a project of the people. It became a Jan Andolan. And I can tell you, when I joined the ministry in 2017, 3rd September, this was the highest priority. We still had people telling us at that point of time, अरे आप स्वच्छता की बात देखते हैं, मेरे घर के बाहर तो कूड़ा पड़ा हुआ है। अरे क्योंकि जो बिहेवियरल चेंज था वो हो नहीं रहा था। आप अपने घर के अंदर सफाई करते थे, कूड़े को लेके वो अपनी गली में डाल देते थे। So we are blocking the drain. Today you have a situation, you have an app. If you are traveling, say, from here to place Y, and you come across a kooda ka dher somewhere, you can just take a photograph, send it up, and the local authorities will give you compliance in how much time they've cleared it. Today it's a different story. The Swachh Bharat mission 1, which wanted to make India ODF, succeeded. There was a little delay because one state was late in coming on board. But today this is the foundation. All our other schemes. It is the foundation of the Smart Cities Vision. It is the foundation of Amrut. Now, what have we done? We have reached SBM 1. We are starting SBM 2. There are some shortcomings. For instance, waste processing, which was roughly 18% in 2014, we have been able to raise it to about 80% or so, 83%. We need to make it 100%. We need to make sure that all the legacy dump sites are brought up. It's happening. Mr. Puri, you have recently given the impetus to toilets that are there at petrol pumps, you know, because Petroleum Ministry also comes under you. What is this initiative and what are the biggest sanitation-related challenges that India still faces? Petrol pump users, of those who are going to fill their two-wheelers, three-wheelers, etc., is nearly 5% of our population. So if you can produce very good world-class facilities on those who are going to tourist sites, you know, we are in a situation where after the pandemic, domestic tourism has really shot off. I mean, it's exploded. Yep. Maybe because people felt that they couldn't travel during the pandemic. Today, airlines are full, domestic hotels, I'm not talking about 5-star facilities which always have a higher occupancy whenever there's some conferences going on or something. But I'm talking about tier 2, tier 3 cities. You can't get, I went to Srinagar recently, and I was amazed. Prior to the pandemic, Srinagar airport used to get a footfall of 32 to 40,000 passengers in a day. In May this year, the footfall was 1,20,000. Wow. Srinagar used to get 32 planes landing and taking off in a day. Today it's 112. So domestic tourism is taking off. And if we can ensure world-class toilet facilities in where domestic tourism takes place and where foreign tourists come. So these are at 191 locations where the OMCs, the oil marketing companies, where they have their retail outlets. We have just upgraded the toilets there, and in the coming few weeks we will show you both on social media and otherwise. I'd be happy to invite you and others to go and physically witness some of these and document it. Sure. You see, when a government plan becomes a Jan Andolan or a people's movement, we need everyone, particularly our friends in the media, on board, because that's how the message goes. All right, I want to thank Mr. Puri. Thank you so much. Many congratulations on the successful completion of SBM 1 and all the best for SBM 2. Now, we have a very special message, in fact, words of appreciation from Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, who is promising us
all the support from the state of Uttar Pradesh for the cause of both sanitation and water conservation. Let's listen in. नमस्कार। मिशन पानी न्यूज 18 की इस पूरी मुहिम के लिए मैं बधाई देता हूं। वास्तव में यह एक पवित्र अभियान है। इस धरती माता पर जीवन जीने लायक बने, इसमें जल की और उसमें भी स्वच्छ जल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। इसके लिए न केवल शासन और प्रशासन के स्तर पर बल्कि आम जनमानस की जागरूकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश इस देश से बहुत सौभाग्यशाली है कि दुनिया के सबसे अच्छे जल संसाधन उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जो चुनौती विश्व मानवता के सामने आने वाली है, अगर अभी से हर नागरिक उसके लिए जागरूक नहीं हुआ तो स्वाभाविक रूप से एक भीषण संकट जीवन को जीने के लिए जल की बूंद का सबके सामने आ सकता है। हमारे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इस संबंध में अनेक कार्यक्रम चले हैं। खासतौर पर अभी आपने देखा होगा, देश ने अपनी आजादी का अमृत महोत्सव का भव्य आयोजन किया है। 15 अगस्त 2023 तक आयोजन चलेगा। जल संरक्षण के लिए हर गांव में अमृत सरोवर बनाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चली है और देश के अंदर हजारों गांवों में इस वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम उन अमृत सरोवरों के तट पर ही संपन्न हुआ। कैच द रेन इसी अभियान की प्राथमिक कड़ी रही है और नमामि गंगे परियोजना की सफलता अपनी एक नई कहानी कहती है। हम सब जानते हैं कि गंगोत्री से गंगा सागर तक पवित्र सलीला मां गंगा सबसे अधिक दूरी उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर तय करती है। नमामि गंगे परियोजना का जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट था वह कानपुर था। कानपुर में सीसामऊ के पास 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा जी में उड़ेला जाता था, लेकिन नमामि गंगे परियोजना का परिणाम है कि आज सीवर गिरने वाला पॉइंट सेल्फी पॉइंट बन गया है। जाजमऊ, जहां पे जलीय जीव पूरी तरह नष्ट हो गए थे, नमामि गंगे परियोजना का परिणाम है कि आज वहां पर जलीय जीव फिर से आ गए हैं। गंगा जी में फिर से गांगे डॉल्फिन के हमें दर्शन हो सकते हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं नमामि गंगे परियोजना के तहत, उसके सार्थक परिणाम भी हम सबके सामने आ गए हैं और आ रहे हैं। लेकिन प्रत्येक नागरिक की जागरूकता इसके लिए आवश्यक है और यह तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब
प्रधानमंत्री मोदी जी के जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना जमीनी धरातल पर क्रियान्वित हो रही है। स्वाभाविक रूप से जल की एक एक बूंद को सुरक्षित रखना, उसका संरक्षण होना उतना ही महत्वपूर्ण होगा। और इस अभियान में न्यूज 18 नेटवर्क ने जन जागरूकता का कार्यक्रम अपने हाथों में लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि न्यूज 18 की यह मुहिम रंग लाएगी। स्वच्छता और मिशन पानी का यह अभियान न केवल जीव और जंतु के संरक्षण के लिए अपितु स्वास्थ्य के तमाम मानकों को भी पूरा करने के लिए, उसमें खरा उतरने के लिए भी शुद्ध पेयजल की उपलब्धता उतनी महत्वपूर्ण होगी। जन जागरूकता के माध्यम से हम उन सभी संभावित खतरों से बच सकते हैं जो विश्व मानवता के सामने आ रहा है। इस पूरी मुहिम के लिए यानी मिशन पानी न्यूज 18 नेटवर्क के इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। Thank you very much, Yogi Adityanath there, the Chief Minister of Uttar Pradesh. अब हमारे साथ है Natasha Patel. She's the CEO of the India Sanitation Coalition. We're also joined back by Ravi Bhatnagar, who is the Director for External Partnerships South Asia, Reckitt. But first, I want to go across to Brijesh Pathak, who is the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, who is joining us. Brijesh ji, आप सुन पा रहे हैं हमको? हाँ, आवाज आ रही है आपकी? जी। ब्रजेश जी, आपने अभी आवाज आपकी मुझे मिल रही है? हाँ, हाल ही आपने अभी इनिशिएटिव लॉन्च किया था डायरिया नेट जीरो रैकेट के साथ मिशन पानी के मुहिम जो है, आपको स्वागत करते हैं हम। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा प्रदेश है, आबादी वाला राज्य है हमारा, हर घर में शौचालय बनवाना और सार्वजनिक जगहों पर वहां बनाए जाएं और शौचालयों की साफ सफाई के काम बहुत बड़ी तौर पर और बड़ी चुनौती रही है। लेकिन हमें ये बताइए, ये कितना सफल हुआ है और अभी बाकी काम क्या बचा है? मैं सबसे पहले आभार प्रकट करता हूं नेटवर्क 18 का, जिन्होंने मिशन पानी अभियान चला करके पूरे देश में स्वच्छता का एक नया वातावरण पैदा करने के लिए काम किया है। मैं नेटवर्क 18 से जुड़े सभी भाइयों का, बहनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि मिशन पानी अभियान जो नेटवर्क 18 ने प्रारंभ किया है, ये कोई साधारण अभियान नहीं है। ये मानव जाति के साथ साथ प्रकृति में रहने वाले सभी जीव जंतुओं के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव नेटवर्क 18 ने पूरे देश में कायम करने के लिए काम किया है। मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली, तो उन्होंने तय किया महात्मा गांधी जी का जो स्वच्छता मिशन था उसे हम धरातल पर उतारेंगे। धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने तय किया कि सबसे पहले प्रत्येक घर को हमें शौचालय देना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी चुनौती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम हर घर में शौचालय बनाने में सफल हुए हैं और लगभग 2.5 करोड़ से अधिक घरों को निःशुल्क शौचालय बनाए जाने का काम हमने पूरा किया है। इसके अलावा जो हमारी ग्राम पंचायतें थी, ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाना भी हमारे सामने एक बड़ा काम था, क्योंकि जो सिंगल घरों में शौचालय बने थे, कहीं कहीं वहां दिक्कतें आ रही थी साफ सफाई की, सैनिटेशन की। तो हमारी सरकार ने तय किया कि सभी ग्राम पंचायतों में हम सामुदायिक शौचालय बनाएंगे, जिसमें स्नानागार के साथ पीने के पानी का भी इंतजाम होगा और शौचालय का भी इंतजाम होगा। और लगभग सभी गांवों में हमने ऐसे सामुदायिक शौचालय बना दिए हैं। और सबसे बड़ी बात थी उसको मेंटेन करने की। उनको मेंटेन कौन करेगा? तो हमारे सामने दूसरी चुनौती थी कि हम किन लोगों को उससे जोड़ें जिससे हमारे सामुदायिक शौचालय स्वच्छ भी रहे और लोगों को रोजगार से भी जोड़ पाए। तो हमने हमारी जो बहनें थी जो स्वयं सहायता समूह चलाती थी, उनको, उन बहनों को उनसे जोड़ करके एक एक स्वयं सहायता समूह को ऐसे सभी सामुदायिक शौचालय हमने सौंपे हैं, जो पंचायती राज विभाग के माध्यम से उनको हम लोग पेमेंट करते हैं और वो साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं
और उस जिम्मेदारी के साथ पीने के पानी, स्नान के पानी के साथ साथ शौचालय के भी व्यवस्था करने का काम करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में हमने 2.5 करोड़ से अधिक शौचालय सिंगल बनाने का काम किया है और जिनका उपयोग विधिवत हो रहा है। ये एक जन आंदोलन है जिसमें सब लोग जुड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा रोल होता है पंचायत का। कैसे कन्विंस किया आपने उनको कि आपके साथ वो जुड़े इस मुहिम में? दरअसल ये सही कह रहे हैं आप, बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। तो हमने हर ग्राम प्रधान को इससे जोड़ा, ब्लॉक प्रमुख को जोड़ा, जिला पंचायत सदस्यों को जोड़ा, बीडीसी सदस्यों को जोड़ा और ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि थे, जो मेंबर थे, उनको भी जोड़ा। और जोड़ने के बाद कई बार पूरे प्रदेश की कॉन्फ्रेंसेज आयोजित की गई, फिर हम लोगों ने जिलावार कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, फिर हम लोगों ने ब्लॉकवार आयोजित किया, तहसीलवार आयोजित किया और ये तय किया कि सबको इस मुहिम में शामिल होना है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हम धरातल पर उतार पाए हैं। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में जाएंगे, देखेंगे हमारे पास सामुदायिक शौचालय बना हुआ है और उसका जो रखरखाव है हमने एक स्वयं सहायता समूह को दिया है जो किसी एक बहन के हाथ में है और सरकार उसका विधिवत पंचायती राज विभाग के माध्यम से पेमेंट कर रही है। इसके अलावा शौचालय तो हमने बना दिए, सिंगल शौचालय सबको हमने दे दिया। इसके अलावा हमने सामुदायिक शौचालय बना दिए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करानी थी। आप जानते हैं कि हमारे सामने जब पेयजल से जो दूषित पेयजल पीने के कारण ही ढेर सारी बीमारियां बच्चों में पनपती हैं, महिलाओं में पनपती हैं, नौजवानों में पनपती हैं, बुजुर्गों में पनपती हैं। तो हमारी सरकार ने तय किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो जल जीवन मिशन है उसके तहत हम घर घर फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन हम देंगे, FHTC। आपको पता है कि अभी तक हमारा लक्ष्य है 19 नवंबर 2022 तक हम 55 करोड़ परिवारों को दे चुके हैं और हर घर को हम ये देना चाहते हैं। और यही फिगर 15 अगस्त 2019 पे मात्र हमारे पास 5,16,221 थी। जी ब्रजेश जी, बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ मिशन स्वच्छता और पानी में। We have a very special guest we have to invite on stage. Yes, Sahil Talwar is working actively with Reckitt on Diarrhea Net Zero campaign, and let's get him straight on the stage. Thank you so much, Sahil. Welcome on stage, Sahil. Thanks. Can we have a round of applause for Sahil Talwar, please? Thank you. Thank you very much. Sahil, how does the WHO 7-point plan help, and why is what really is the foundation of this diarrhea net zero and safe toilets for all? It's a campaign. When did it start? Give us the background. So, Mr. Brijesh Pathak ji and the Honorable Governor herself launched the program on the 27th of June. So, talking about the WHO 7-point plan, it is the only strategy that we have where we talk about the prevention, promotion and treatment of diarrhea. So all the core aspects of the diarrhea management are covered here. And within this program, we have aimed to create a cadre of 10,000 Swachhta prairies who are going to be further reaching out to 17.5 million women. Mm-hmm. So, over the past few conversations, we have been talking a lot about, this being a people-led movement, using the citizen force. So what better example of, the citizen force than these 10,000 champions who are going to be reaching out to the communities, focusing on the prevention part, focusing on the promotion part. And we'd be surprised to know that 95% of the cases of diarrhea can be averted just by ensuring that we are using clean drinking water, we have safe sanitation facilities, and we are washing our hands at the critical moments with soap. So Sahil, you've been working with Reckitt, of course. So let me ask Ravi, what has your experience been in this Diarrhea Net Zero initiative from ground up? We heard from the earlier segment as well. This can't be a top-down approach. It has to be bottom-up. So what has your experience been at Reckitt with the Diarrhea Net Zero initiative? It's one of the very, very promising initiatives. Mm-hmm. Reason being, the two initiatives actually, one has given us already results, which is on the malnutrition stunting, as Amitabh Kant ji was actually speaking. Yeah. Where among, there's a Niti Aayog publication on the aspirational districts. Correct. Right. There are 10 best practices from the aspirational districts. Among those 10, there are top two, which comes from our office, through our partners. So a lot of actually, strength we get from our partners, the work they have done.
we have a lot of learnings from there by doing work in the aspirational districts, and we thought like, when Uttar Pradesh is a state which has the highest number of under 5 deaths because of diarrhea. Oh. So why should not be doing something there? Correct. And there's an equal role of Dettol as well as Harpic there. And then, we acquired a brand called Mead Johnson. So where, we started talking about, infant milk also and, breastfeeding and all that. When you see overall this WHO 7-point plan, we are the only program in India, I can proudly say, which talks about prevention, promotion and treatment, all the 3 aspects together. And we have the highest level of support from the government. And we saw there's a big gap in the cadre of frontline health workers in terms of the sanitation champions. So when we started working with Sahil and team, and they said like, that cadre is missing. So we said, okay, let's prove, there should be a proof of concept. We said like 1 district, 2 districts. He said, no, we should do at least half of Uttar Pradesh. Wow. I said half of Uttar Pradesh means, like half of the population of the UK. Yeah, it's like... we agreed to that, and there's a huge support from our leadership, Gaurav, who said we must do this, need gap assessment, and we create this cadre of 10,000 women. Wow. And there is a good probability, like we will be seeing like reduction in the diarrhea cases and other things, which will be backed up by the data from the WHO and the NSO and other surveys. Net, like there's a lot of innovation which is done by the colleagues in Reckitt internally. To put on record, Dr. Jyotsna, she was the one actually who worked on the first bundling kit. Okay. There's one innovation which is a bundling kit where you have bundled ORS, zinc, messages on sanitation, messages on breastfeeding, messages on regular checkups, follow-ups, introduction of vouchers to those who actually can't afford. Because we work with an aim of leaving no one behind. Yes. So correct. To live that on reality, on the ground, it's important like all the important, and that's people why work together. Role of Natasha becomes important, leaving no one behind. Yeah. Natasha, this Lighthouse initiative. Tell us a little bit, I mean, we heard about this in the previous segment as well, but I want to focus on the ODF Plus initiative which you've launched, coverage of 700 districts across the country. What has your experience been in this, and how far more do we have to go to get there in terms of ODF Plus? Okay, first of all, thank you so much for inviting us. Nena did give you a sense of what Lighthouse was. I'm just going to give you a little bit of background to, to make people understand what it really means. So the word lighthouse is used by pretty much every ministry today. Everyone wants to create lighthouses, right? But a real lighthouse is one that is going to show the way to others in the area in which they're working. So that was really the, I guess, the cornerstone with which we were working. This journey that we've started on with DDWS was about a year old, and it just came out of a dialogue that I was having with the secretary at that point of time, where, we were working with Mahua, which is the urban ministry, and they said, why don't you do something for us? And I said, sure, what do you want? And they said, look, we've got 733 districts across India, and we want to, and about 6.6 lakh villages in India. We want to put solid and liquid waste management facilities across all of them. And I was just staring at him, and I said, I mean, he has to, this isn't happening. He's not asking me to do this. But he was. That's exactly what he was doing. He said, how can we do this? So that's where the Lighthouse was born. How do we create examples or models in each district of all our states and use that to then, replicate across the other blocks of that particular Uttar Pradesh, district. Zaka, is being leading by example. Absolutely. We heard from both the Chief Minister and the Deputy Chief Minister. We, in fact, are now going to go across live to Gorakhpur, which also incidentally happens to be the Chief Minister's constituency. We have our reporter Ram Gopal, who is joining us from there. Unke saath koi volunteers bhi hai. और डॉक्टर विवेक चौहान भी आपके साथ हैं जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस और एक्सटर्नल अफेयर्स देखते हैं वहां पे। ये बताइए रामगोपाल जी कि वहां पे जो 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है डायरिया नेट जीरो का, उसके बारे में बताइए जो प्रदेश में हुआ है और खासकर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो हुआ है। बिल्कुल, और इस वक्त मैं गोरक्षनाथ मंदिर में खड़ा हूं और गोरक्षनाथ मंदिर में हमारे साथ विवेक चौहान जी हैं जो रायकटिया के हैं। सर, जो पहला सवाल आपसे ये है कि 5 साल के बच्चों के लिए डायरिया क्यों
एक्चुअली अगर पूरे आंकड़ा देखा जाए तो पूरे विश्व में लगभग 1.7 बिलियन ऐसे केसेस हैं डायरिया के, जो बच्चे डायरिया से प्रभावित हैं, और उसी में से 0.5 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनकी मौत केवल डायरिया की वजह से हो जाती है। और भारत उसमें एक ऐसा देश है जो कम से कम 19-20% मौतें डायरिया से, लगभग 1 लाख पर एनम पर ईयर जो डेथ है वो डायरिया की वजह से होती हैं। अब ये देखा गया कि कारण बेसिकली डायरिया से मौत का कारण ये है कि उसको जो सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कुपोषण का सपोर्ट मिल जाता है, रोटा वायरस का लगभग 45% जो फैक्टर है वो कुपोषण है और 40% रोटा वायरस है। तो इनकी वजह से ये बहुत ही ससेप्टेबल हो जाते हैं बच्चे, जिनकी वजह से ये बहुत जल्दी ग्रिप में आ जाते हैं डायरिया के, और हम लोग जल्दी पहचान नहीं कर पाते हैं फील्ड में कि माताएं बहनें जो बहुत रूरल एरिया में, दूरस्थ इलाके में हैं, उनकी पहचान कर पाना कि ये सच में दस्त है, उनको तुरंत जो उपचार देना है, किस तरह से उसको रोकथाम किया जा सकता है, इनमें थोड़ा जहां देरी होती है तो ये मौतों की संख्या बढ़ जाती है कभी कभी। तो इसलिए हम लोग का ये फोकस है कि हम लोग इन बच्चों को किसी भी तरीके से बचाएं, क्योंकि डायरिया जो है वो प्रिवेंटिव है, हम उसे आराम से रोक सकते हैं अगर हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी ठीक से बनाई तो। ये WHO की जो 7 पॉइंट स्ट्रेटजी है वो कितनी मददगार है डायरिया के रोकथाम के लिए, और जो स्वच्छ शौचालय का आप लोग एक अभियान चला रहे हैं? WHO की जो स्ट्रेटजी 7 पॉइंट एक्शन प्लान है वो एक होलिस्टिक अप्रोच है। बेसिकली एक स्ट्रेटजी है कि जितने भी टाइप के जो कॉजेज हैं जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है, अगर हम सबको उसको अप्लाई करते हैं WHO के, जिसमें कि 5 आपके रोकथाम के उपाय हैं और 2 उसके ट्रीटमेंट हैं। 5 में से साफ पानी की उपलब्धता हो, साफ शौचालय हो, उपयोग करने लायक शौचालय हो, हैंड वॉशिंग हो, जो है ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो अगर 6 माह तक के बच्चे को कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग करानी है तो इस तरह से, रोटा वायरस वैक्सीनेशन देना है बच्चों को, तो अगर ये, और साथ में अगर जो ट्रीटमेंट के लिए ORS और जिंक अगर हम देते हैं तो WHO के होलिस्टिक प्लान ये कहता है कि इससे हम डायरिया के बच्चों को मरने से बचा सकते हैं। अब आपने जैसे देखा इन 5 में से, तो अगर SDG 3 का जो गोल है और SDG 6 है, मतलब हेल्थ और सैनिटेशन, ये ऑटोमेटिक इसमें मर्ज हो गया आकर के। तो अब इसी हिसाब से फिर हम लोगों ने अपना ये प्लान बनाया, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम का नाम जो है वो साथ में सेफर टॉयलेट फॉर ऑल है। बेसिकली डायरिया जो हो रहा है वो खुले में शौच की वजह से या किसी भी तरीके से जो हम गंदगी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और वो गंदगी जो हमारी मल से मुख की यात्रा है ना, उसको रोकना है। तो ये जो चीज है, अब उसके लिए सेफर टॉयलेट फॉर ऑल के लिए हमारे जो 3 पिलर हैं, सबसे बड़ा ही एक्सेस, मतलब अगर शौचालय है तो उसको नहीं है तो एक्सेस तक शौचालय की पहुंच करनी है, उसको उपयोग करना है, और अगर उपयोग करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम उसको सस्टेनेबल मोड में उपयोग करें। जो भी है, जैसे हमारे हार्पिक का मिशन भी कहता है कि जो भी अगर उसको यूज करने आए उसको रेडी टू यूज मिले आपका शौचालय। इस तरीके की मुहिम से आप लोग किस तरीके की जागरूकता फैला रहे हैं, किस तरीके से जन जागरूक कर रहे हैं, क्या क्या अपना रहे हैं आप लोग टूल्स? देखिए, ये एक जंग है, और इस जंग में जब अभी तक ये देखा गया, हम लोगों ने ये फील किया कि जब नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम हमारे ये चालू हुए, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन चालू हुआ और जल जीवन मिशन चालू हुआ, तो तब ODF था, फिर ODF प्लस आया, ODF प्लस प्लस आया, जिसमें कि तो कंटिन्यूअस ये इसका विस्तार होता जा रहा है, और जो है एक फील्ड में एक वैक्यूम सा दिखने लगा कि बैकअप सपोर्ट जो है, जो रूरल कम्युनिटीज, ग्रास रूट वर्कर्स हैं, उनको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, एक मैकेनिज्म चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने अपने जो स्वच्छता प्रहरीज हैं, हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि हम इनको महिलाओं को खास तौर से लेके आएंगे, क्योंकि महिलाएं सीधे संबंधित होती हैं उस 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो वो उनको हम लोग इसमें प्रशिक्षित कर रहे हैं स्वच्छता प्रेरक के रूप में, और ये पूरे दूर दूर तक और ज्यादा पेनिट्रेट करेंगी गांव-गांव में जाकर के, ताकि केस को हम आइडेंटिफाई कर सकें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों की जान बचा सकें। और रही बात हमारी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज की, क्या हमारे टूल्स हैं, तो आप यहाँ पीछे देख भी रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों ने हर एक उम्र के, हर एक एजुकेशन क्लास वर्ग के, चाहे वो पढ़ा लिखा शिक्षित हो या अशिक्षित हो, चित्रों के माध्यम से अलग अलग भाषाओं में हम लोगों ने इस तरह से अपने टूल डेवलप किए हैं। रामगोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विवेक, also thank you very much for joining us. I request Natasha, Ravi and Sahil to stay on with us. Maria? Yes, we are slipping into a short break. I'll say the grand telethon of Mission Swachhta and Paani is continuing. We'll be back after a short break. Stay with us.